नमस्ते बच्चों, दिस इज़ दीपक कुमार सिंह from USAID DAV Public School, Maharajganj. Now today I am going to discuss about micronutrients. In the last video I had already discussed about macronutrients. So in this video I am going to discuss the micronutrients. Micronutrients is a nutrients that is required in a very less amount for our body. मीन्स वैसे न्यूट्रिएंट्स जिसको हमारे शरीर को काफ़ी कम मात्रा में ज़रूरत है, उस तरह के न्यूट्रिएंट्स को हम क्या कहते हैं? माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के अंदर दो न्यूट्रिएंट्स आते हैं। फर्स्ट है मिनरल्स एंड सेकेंड है विटामिन्स। इन minerals there are two types of minerals. First is macro minerals and the second is micro minerals. So first of all I am going to discuss about the minerals. Minerals is essential in our diets. About 4% of our body weight is made up of minerals. Minerals help us by the formation of required for healthy teeth, bones and muscles. Minerals are also used by body for various activities such as transmission of nerve impulse, formation of hormones and maintenance of heartbeat. So these are the work of minerals. Now microminerals is such type of minerals which our body needed in a large amount for performing their functions. In microminerals, the first is calcium. Calcium, it makes the teeth and bones strong and healthy. It also helps in blood clottings. It defenses may cause rickettsis. The source of calcium is cheese, milk, orange, etc. Now, the next is potassium. Potassium is also important minerals. It helps in maintaining the nerve systems and the muscular systems fit and active. So this is the work of potassium. Potassium, the source of potassium is banana, tomato, green leaf, etc. These are the source. We can find or we can get a potassium from bananas, tomato, green leaf, etc. Now the next topic is next element macronutrients is sodium. Sodium, it helps in muscular activity. It also helps to transmission of nerve impulse, and the main source of sodium is pickles and salt. सोडियम के बारे में हम एक और चीज बताना चाहते हैं. इट ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर आवर बॉडी वेट. आप देखते होंगे कि जब हम कभी हाई इंटेंसिटी फिजिकल एक्टिविटीज का कोई वर्क करते हैं तो उसके बाद हमारे अंदर जो सोडियम है स्वेटिंग के थ्रू बाहर निकल आता है, जिसके कारण हमारा बॉडी वेट जो है थोड़ा कम हो जाता है. आप इसका एक प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं. आप कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करने से पहले आप अपना बॉडी वेट मेज़र कर लें और उसके बाद मेज़र करने के बाद उसे नोट कर लें, और फिर जब आप उस एक्टिविटीज़ को कम से कम आधे घंटे हाई इंटेंसिटी के साथ
जब फुल स्वेटिंग बॉडी से हो, पूरे स्वेटिंग निकल जाए, तब आप फिर हाफ एन आवर के बाद आएँ और अपना बॉडी वेट फिर से मेज़र करें। आप देखेंगे कि आपका जो पहले लिया गया मेजर वेट था वो और अभी का जो लिया गया उसमें डिफरेंट आएगा, उसमें कमी आएगी। इसलिए कभी कभी आप लोग देखते होंगे कि जब जूडो या कराटे जो वेट कैटेगरी के गेम्स होते हैं, उसमें अगर कोई प्लेयर्स या बच्चा जो कि इलीगल है 1 या हाफ केजी या 1 केजी वेट बढ़ जाता है, तो वेट करने से पहले वो फिजिकल एक्टिविटीज करके अपने अंदर से सोडियम को बाहर निकाल देता है स्वेटिंग के थ्रू, और फिर जा करके जब मेजर करता है तो उसका 1 केजी या हाफ केजी रिड्यूस हो जाता है और फिर वो अंडर वेट कैटेगरीज में आ जाता है, जो कि सही नहीं। लेकिन वो कारण क्या है कि जो हमारे अंदर सोडियम प्रेजेंट है वो सोडियम बाहर आ जाता है, जिसके कारण हमारा बॉडी वेट थोड़ा लूज कर जाता है। नाउ द नेक्स्ट इज मैग्नीशियम। It's repair and maintain body shell. It found in meats, rice, etc. Next is phosphorus. Phosphorus is help in formation of bones and teeth. Means it helps calcium also. जो हमारे दांत और हड्डियां को बनाने में मदद करती है वो है फॉस्फेरस। मीन्स फॉस्फेरस जो है कैल्शियम को भी वो हेल्प करती है, क्योंकि कैल्शियम से हमारा जो बोन्स एंड टीथ है वो स्ट्रांग होता है और हेल्दी होता है। नाउ द नेक्स्ट इज माइक्रो मिनरल्स। माइक्रो मिनरल्स मीन्स आवर बॉडी नीड इन स्मॉल अमाउंट। सो फर्स्ट इज आयोडीन। आयोडीन इट हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स इन थायराइड ग्लैंड्स। It is also important for proper growth and development of the body. Lack of iodine causes goiter, means swelling thyroid glands. The source of iodine is salt, fish, seafoods, etc. Now, the next is iron. It is essential in the production of हेमोग्लोबिन्स। मीन्स हमारे अंदर जो खून रक्त बनते हैं उसका जो प्रोडक्शन है वो हम आयरन के थ्रू ही होता है। आयरन के थ्रू ही हमारे अंदर जो हेमोग्लोबिन्स है वो बनता है। इसके कारण आयरन के कमी के कारण हमारे अंदर जो एक बीमारी है एनीमिया, क्योंकि लैक ऑफ ब्लड के कारण एनीमिया एक बीमारी होती है, वो बीमारी होने की संभावना होती है अगर हमारे अंदर आयरन की कमी हो तब। इसका जो सोर्स है, द मेन सोर्स ऑफ आयरन इज बनाना, ग्रीन लीफ, वेजिटेबल्स एक्सेट्रा। नाउ द नेक्स्ट इज क्रोमियम। क्रोमियम it is responsible for production of insulin activities. Its deficiencies may cause diabetes. The source of chromium is tomato, groundnuts, etc. Copper, it helps आयरन इन द फॉर्मेशन ऑफ हेमोग्लोबिन। मीन्स हेमोग्लोबिन को बनने में आयरन का मदद करता है, वो है कॉपर। हमें ये मिलता है ग्रीन लीफ से। नाउ द लास्ट इज कोबाल्ट। इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम एनीमिया। एनीमिया मीन्स द लैक ऑफ ब्लड। So this is all about micronutrients. In the next video, microminerals. In the next video, I will discuss about vitamins. Vitamins are also 2 types, that is fat soluble vitamins and water soluble vitamins. Thank you.